Hello everyone, online classes, class 8, subject science, chapter 15, some natural phenomena, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं. In class 7th, you read about winds, storms and cyclones. You learned that cyclones can cause a lot of damage to human life and property. You are also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. In this chapter, we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes. We shall also discuss what steps we can take to minimize detection caused by these phenomena. कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ा था. आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं. आपने यह भी कभी जाना है कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं. इस अध्याय में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं टंडित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे. हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे. लाइटनिंग टंडित. You might have seen sparks on a electric pole when wires become loose. This phenomenon is quite common when wind is blowing and shaking the wires. You might also have seen sparks when a plug is loose in its sockets. Lightning is also an electric sparks but on a huge scale. विद्युत की तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी. यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर, हवा के चलने पर तार हिलते डुलते हैं. आपने सॉकेट पर प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते हुए देखा होगा. टंडित भी एक विशाल स्तर की बहुत विद्युत चिंगारी ही है. In ancient times, people did not understand the causes of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. We need not be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly sparks. प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारण नहीं समझते थे, अतः वह टंडित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है. अब वास्तव में यह जानते थे कि बादल में आवेश के एक कंतित होने पर टंडित पैदा होती है. हम टंडित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानीपूर्वक बरतनी चाहिए. द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट. चिंगारियों जिनके विषय में यूनानी जानते थे. The ancient Greek, now as early as 600 Vedic BC, that when amber is a kind of resin, was rubbed with for it attracted light objects such as hair. You might have seen that when you take off woolen or polyester cloths, your hair stands on ends. If you take off these clothes in the dark, you even see a sparks and hear a crackling sounds. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are instantly the same
phenomena. However, it took 2000 years for this realizations to occur. 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी सब यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की राल को फ्लड से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते हैं। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्र को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि ठंडी तथा उनके आपके वस्त्रों को उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। I wonder why they took so many years to realize the similarity. मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता का ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। Scientific discoveries are a result of hard work by many people. It can sometimes take a long time. वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. हम विद्युत आवेशों के कुछ गणों का अध्ययन करेंगे और इसमें चर्चा भी करेंगे। यह भी देखेंगे कि आकाश में ठंडित से किस प्रकार संबंधित है। Let's perform some activities to understand the nature of electric charges. What recall first what you might have played as a game when you rub a plastic scale on your dry hair, and the scale can attract very small pieces of paper. विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए कि जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को आप सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से चिपक जाता है। चार्जिंग बाय रबिंग, रगड़ द्वारा आवेशन। When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. These objects are called charged objects. In the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged. जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो वह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इस प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी अवशेषित हो जाते हैं। Let's try to charge some other object that are familiar to you. आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को अवशेषित करने का हम प्रयास करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्य क्रिया। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। हम अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 50.1 में से चुनते हैं। लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशंस। आइए प्रेक्षणों के सारांश करें। ए चार्ज बैलून रिप्लाइड ए चार्ज बैलून, एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारों को प्रतिकर्षित किया। ए चार्ज रिफिल रिप्लाइड ए चार्ज रिफिल, एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया। बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्टेड ए चार्ज रिफिल, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल? कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ
Charges can be also said that the charges of the some kind repel each other while charges of different kind attract each other. क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर यह हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजाती एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजाती भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? इट इज ए कन्वेंशन टू कॉल टू चार्ज acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं. The other kinds of charge is said to be negative. अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there are attractions between the two. यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ते गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षक होता है. What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? Your guesses that the plastic straw would carry a negative charge is correct. आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार के आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होना चाहिए सही है. The electrical charges generated by rubbing are static. They do not move by themselves. When charges move, they constitute an electric current. You have been reading about electric current since class 6. The current in a circuit which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges. रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वह स्वयं गति नहीं करते हैं. जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है. कक्षा 6 में ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं. परिपथ में प्रवाहित होने वाले यह विद्युत धारा जिसमें बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाती है और कुछ नहीं वरना आवेशों का प्रवाह ही होता है. ट्रांसफर ऑफ चार्ज, आवेश का स्थानांतरण. The aluminum foil strips received the some charge from the charged refill thought the paper clip. Remember that metal are good conductor of electricity. The strips carrying similar charges refill each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is now as इलेक्ट्रोस्कोप. एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल के में आवेश प्राप्त करती हैं. याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं. समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वह फैल जाती हैं. इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं. इस युक्ति की विद्युतदर्शी कहते हैं. Thus, we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है. Touch the end of the paper clip gently with hand and you will find a change in the foil strips. They come back to their original state. Repeat charging of foil strips and touching the paper clip every time. You will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand. Why does it happen? The reason is that the foil strips lose charge to the earth through your body. We say that the foil strips are discharged
The process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. इस पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन दिखेंगे। यह अपने मूल स्थिति में वापस आ जाती है। पन्नी की पट्टियों को अवशेषित करना तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी पर चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश की पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, टंडित की कहानियाँ। It is now possible to explain lightning in terms of the charge produced by rubbing. आप रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर टंडित की व्याख्या करना संभव है। You learnt in class 7th that during the development of a thunderstorm, the air current move upward while the water droplet move downward. This vigorous movement cause separations of charges by a process not yet completely understood. The positive charges collect near the upper edges of the clouds and the negative charges accumulate near the lower edge. There are accumulations of positive charges near the ground also. When the magnitude of the accumulated charges becomes very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. Negative and positive charges meet, producing streaks of bright light and sound. We see streaks as lightning. The process is called an electric discharge. कक्षा 6 में आपने यह सीखा है कि गरज वाले तूफानों से बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है, एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सकते हैं। बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं और ऋण आवेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियों तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम टंडित के रूप में देखते हैं। इस जो 15.5 इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। The process of electric discharge can occur between two or more clouds or between clouds and the earth. Today we need not get frightened by lightning like our ancestors did. Now we understand the basic phenomenon. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strike could destroy life and property. It is therefore necessary to take measures to protect ourselves. विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। हम प्राचीन काल के लोगों की भांति टंडित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल घटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि टंडित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हम अपने बचाव के लिए उपाय करना आवश्यक है। थैंक यू।